شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیوی، اور خاص طور پہ ناری۔ اور یہ ایک بڑا سنجیدہ اور حساس ٹاپک ہے۔ اسے کان کھول کے، ذہن کھول کے اور کھلے دل سے، کھلے ذہن سے اس کو سمجھیں۔ اس کا ہیڈنگ دے دیں ناری، کوما ڈال کے، پھر بیوی، پھر کوما ڈال کے رونق، پھر کوما ڈال کے تحفہ۔ کیوں کوما میں کہہ رہا ہوں ڈال کے؟ کیونکہ ہر اس کے نام میں ایک الگ خوبصورتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ ناری ہے تو نر سے نکالی گئی ہے۔ ازرو بائبل پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے یہ نر سے نکلی ہے، اس لیے ناری کہلاتی ہے۔ اور نر اور ناری، جب نر اور ناری کہا جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا بھی ایک لفظ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی خاص تخلیق ہے۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا۔ خدا نے اس کو ایک خاص عزت دی ہے، اور ایسی عزت دی ہے کہ اگر آپ اس کو بیان کرتے جائیں تو آپ کبھی بھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کبھی بھی اس کی انسلٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خدا کی خاص تخلیق ہے۔ یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ خدا کا ایک صفاتی نام ایل شدائی ہے۔ ایل شدائی کا مطلب ہے جو گواہی کا خدا ہے، جو شہادت کا خدا ہے کہ میں خدا ہوں۔ میری گواہی ہے کہ میں خدا ہوں، میری گواہی ہے کہ میں خالق ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں۔ تو عورت کی ایک صفت خدا کے ساتھ ملتی ہے کہ اس کے بطن سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایل شدائی مادائی ایک صفت ہے، فیمیل صفت ہے، مادی صفت ہے۔ اور خدا میں سے فرشتے نکلے ہیں، خدا میں سے تخلیق، باقی کے کام خدا نے تخلیق کیے ہیں، بنائے ہیں، لیکن جو اس میں سے نکلے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا میں سے نکلا ہے، وہ میں سے نہیں نکلا، وہ خدا ہے۔ صرف اس نے ایک انسانی لبادہ پہنا ہے، ایک اس نے اپنی ایسی باڈی بنائی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ بارش میں جانے کے لیے رین کوٹ پہنا جاتا ہے تاکہ بارش کا اثر نہ ہو۔ فائر جو ایک لباس ہے جو آگ کا ہے، اس کو وہ آگ کے جو فائر فائٹر ہیں، جو آگ بجھانے والے ہیں، ان کے اس طرح کے کپڑے ہیں کہ ان کو جلدی آگ نہیں لگتی۔ تو یہ ایک بدن خدا نے اپنے لیے تیار کر رکھا تھا،
जिसकी सूरत पर उसने इंसान को बनाया, और वही बदन, वही बॉडी हुरब पर मूसा को दिखाई गई। ये खुदा की अपनी बॉडी है जो मूसा ने वहां पर हुरब पर देखी। इसलिए खुदा इंसान की सूरत पर नहीं आया, इंसान खुदा की सूरत पर बना है। इस बात के गुंजल को, इस बात की जो खास बरीकी है, इसको समझो। हम खुदा की सूरत पर हैं, लेकिन जो खुदा की सूरत है वो ऐसी है कि वो आग में जाए तो आग नहीं जलती, आग नहीं जलाती, पानी में जाए तो पानी नहीं डुबोता और पानी नहीं असर करता, उस पर हवा का असर नहीं, उस पर वजन का असर नहीं, उस पर मौत का असर नहीं। वजन का मैंने इसलिए कहा कि 9 टन का पत्थर यस्सु की कब्र पर रखा गया तो वो ऐसे लुढ़क गया जैसे उसकी कोई बात ही नहीं। तो मैं इस तरफ ज्यादा नहीं तवज्जो दिलाना चाहता, तवज्जो मेरी है फीमेल पे, मादा पे। तो जो मादा है वो एक खुदा की सिफ्त है, इसलिए कभी भी औरत को डिग्रेड ना करें, इसको इज्जत दें, क्योंकि यही औरत आपको मर्द बनाती है। ये एक ऐसी लेबोरेटरी है जिससे आप साबित होते हैं कि आप मर्द हो। अगर औरत आपका बच्चा पैदा ना करे तो आप भले आपकी 6.25 फुट 6.5 फुट हाइट हो, आपकी 42 इंच की छाती हो और आप बड़े गबरू जवान हो, आपकी आंखें मोटी मोटी हों, मूछें मोटी हों, बड़ा कादावर हों, बड़े जानदार हों, लेकिन अगर आप से नस्ल ही नहीं चलती, आप नारी नहीं हो, तो आप तो जो ख्वाजा सरा हैं, हिजड़े हैं और खुसरे हैं, तो वो हो सकता है आपसे भी ज्यादा ताकतवर भी हों, खूबसूरत भी हैं, हेल्थी भी हैं और सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर वो सीड नहीं, वो बीज नहीं जो आगे अफजाइश नस्ल को कायम रखा जाए, जो बका को कायम रखा जाए। इसलिए अपनी बीवी को इज्जत देते हुए आप देखें कि इब्राहिम ने अपनी बीवी के लिए दुआ की, इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की, यकूब ने अपनी बीवी के लिए दुआ की। जब अपनी बीवी के लिए दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो फिर नेक और पाक औलाद पैदा होगी। करंथियों के खत में लिखा है, जब पाक निकाह में बंध जाते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे साथ बात की, उसने कहा जी जो नाजायज औलाद है, जो बगैर निकाह के या किसी के साथ रेप करके या किसी को उठा के ले जाने से जो औलाद हो जाती है, तो अगर ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है, तो खुदा उस बच्चे को पैदा ही ना करे। तो मैंने कहा कि और जरा डीप सोच कि खुदा अपने असूलों का पाबंद है, वो अपने असूलों के ताल्लुक से समझौता नहीं करता। जब उसने किसी को मर्द बना दिया है, उसके अंदर बीज रख दिए हैं, बीज उगेगा, भले उसको पानी में रख दो, भले गमले में रख दो, भले जमीन में रख दो, वो उगेगा, क्योंकि वो उसको जो चाहिए जगह मिल जाती है तो वो उगेगा। खुदा नहीं डरता इन बातों से कि ये जायज है या नाजायज है, लेकिन वो जायज को इसलिए ब्लेस करता है क्योंकि वो इस मामले को हमेशा कदर की निगाह से देखता है जिसमें मां बाप राजी हो।
दूसरा जिसके लिए माशरा राजी हो, तीसरा जिसके लिए गवर्नमेंट राजी हो, चौथा जिसके लिए दोनों राजी हों, लड़की लड़का राजी हों, और पांचवा कि ऐसे बंधन के लिए आसमान पर खुशियां मनाई जाती है, जिसका लोग कहते हैं कि जोड़ियां आसमान पर बनती है। हस्बैंड और वाइफ की बात जो है, बीवी और खामद की बात जो है, जैसे ही खुदा का खादम अनाउंस करता है कि मैं इस मुकद्दस निकाह को कायम रखते हुए, एक खुदा का खादम होते हुए, गवर्नमेंट ऑफ जिस मुल्क में भी है उसका रजिस्ट्रार होते हुए, और माशरती तौर पर, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर, खुदाई तौर पर इनको अनाउंस करता हूं कि ये आज से मियां बीवी हैं। और वही लड़की वही लड़का इतनी सारी गैदरिंग के सामने, मेहमानों के सामने, बहन भाइयों के सामने, माँ बाप के सामने, छोटे बड़ों के सामने, वो एक दूसरे को मियां बीवी मानते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, भले माथे पे करें, गाल पे करें, वो सबके सामने वो उनको शरई तौर पर इजाजत मिल जाती है, कानूनी तौर पर इजाजत मिल जाती है, माशरती तौर पर इजाजत मिल जाती है, खानदानी तौर पर इजाजत मिल जाती है, गवर्नमेंट के तौर से इजाजत मिल जाती है, खुदाई कानून और असूल के ताल्लुक से इजाजत मिल जाती है। तो इसलिए जिसको इतने लोगों ने, 5 गवाहान ने आपके सुपुर्द कर दिया है कि ये तेरी बीवी है, और बीवी के सामने ये बात साबित कर दी गई है 5 गवाह ने कि ये आपका हस्बैंड है, बाद में उसको कहना कि तू क्या है, तू क्या चीज है, तू कौन है, इसका मतलब है आप एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत, एक फर्द की इंसल्ट नहीं कर रहे, आप 5 लोगों की, 5 गवाहान की इंसल्ट कर रहे हैं। ये खुदा ने आपको साथी दिया है जो आपको प्रूव करता है, ये आपकी लेबोरेटरी है जो प्रूव करती है कि आप मर्द हो, और ये मर्द प्रूव करता है कि ये सही औरत है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ औरत की बात है, ये मर्द की भी बात है। ये आपस के लिए एक दूसरे के बंधन को कायम रखते हैं और प्रूव करते हैं कि ये एक परफेक्ट औरत है। अगर उसमें कमी है तो खुदा ने मर्द को यह हक दिया है कि वो अपनी बीवी के लिए दुआ करे, और जब वो दुआ करता है तो फिर खुदा उन्हें औलाद देता है। अगर किसी की औलाद नहीं तो आप अपनी बीवी के लिए दुआ करें, और जब औलाद मिल गई है तो अपनी बीवी को एप्रिशिएट करें, क्योंकि अक्सर गलतियां होती हैं, शुरू शादी में गलतियां होती हैं, बंदा बदतमीजी भी करता है और मारता भी है, डांटता भी है, इंसल्ट भी करता है, क्योंकि ये पादरी सहबान की, ये रहनुमाओं की, ये पंडित, मुल्ला और जितने रहनुमा हैं, ये इनका फॉल्ट है। इनका काम है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम आम नहीं हो, तुम्हारा तलक सिर्फ बॉडी रिलेशन नहीं है, तुम्हारा तलक सिर्फ जिनसियात का नहीं है, तुम खुदा के मंसूबे के लोग हो, तुम खुदा की जगह पर हो। जैसे बाइबल कहती है, छोटे खुदा हो जिनकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। खुदा ने अपने नैब मुकर्रर किया है, बाइबल ये कहती है। इसलिए ये हमारा जो टॉपिक होता है उसका जो टाइटल मैं हमेशा लिखता हूँ, बाइबल और हम। बाइबल क्या कहती है और हम क्या करते हैं। बाइबल का तौर तरीका, बाइबल का रस्मो रवाज, बाइबल के सकाफतो तमदन, बाइबल के लाज डिफरेंट हैं और हमने अपने डिफरेंट बनाए हुए हैं। हमने अपने तौर तरीके बाइबल में
इस तरह से घुसा दिए हैं, इस तरह से फिट कर दिए हैं कि हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं यही दुरुस्त है, जबकि इज्जत का कहा गया, बार बार कहा गया, ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो और ऐ शौहरों तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। जो ताबे की बात है वो है उसकी सुनो, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, तुम उसकी ज़र खरीद नहीं हो, तुम उसके लिए हो, उसकी सुनो, उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसले ना करो। जो वो करता है, जो वो कहता है, उसकी सुनो, उसकी मानो। अपनी मां की, अपनी फुप्पी की, अपनी मासी की, अपने ये जो आजकल चाइनीज पास्टर चले हुए हैं रेडीमेड, जो फेसबुक पे या स्काइप पे या जूम पे हला लाला इन्होंने मचाई हुई है, ना इनको आगे का पता है ना पीछे का पता है, और पता नहीं कहां कहां से किधर लेके भागते फिरते हैं और क्या सुना रहे हैं। और इन्होंने एक चाइनीज सिस्टम बनाया हुआ है, ये चर्च फ्रेंचाइज बने हुए हैं। सिर्फ मनादी करना जरूरी नहीं है, कलाम को समझना भी है। अंदर से मसीह खुदावंद ने कहा तेरे अंदर से चश्मा जारी हो जाएगा। अगर ये कलाम तुम्हारे अंदर है, फिर ये उबल के बाहर आए, फिर जिंदगियां बदलेंगी। तो जूम पे तो और फेसबुक पे और स्काइप पे तो उबल के क्या आना है बाहर। वो तो किसी की कोई चीज पकड़ ली और उधर से इधर करके तो बस एक तरह का समझ लो कि ये कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। पहले उसी फेसबुक पे उसी जगह से राबते करते हैं दुआ के, बाद में उसी से खतो खताबत शुरू हो जाती है, फिर उसी से दोस्तियां शुरू हो जाती हैं और दवाइयाँ मीठा ख़त्म हो जाती है। बाद में आपस में गप्पे मारते रहते हैं, फिर वही भाई वही बहनें एक दूसरे के बाइबल के सवाल हल करते रहते हैं और बाइबल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं दूसरे रिलेशंस के लिए। दोस्ती वहां बनाई हुई है। तो इसलिए कहा गया है ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। और फिर शौहरों को कहा गया अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अपनी बीवी से तो मोहब्बत नहीं रखते और दूसरों की बीवियों की तारीफें चल रही होती हैं, दूसरों की बीवियों को एप्रिशिएट किया जा रहा होता है। अगर आपकी बीवी ने आपको औलाद दी है तो उसने आपको गिफ्ट दिया है, वो बेटा वो बेटी आपको गिफ्ट दिया। अब आपने क्या गिफ्ट दिया? सहेलियों के लिए, दोस्तों के लिए तो बड़े गिफ्ट हैं, लेकिन जिसने आपका नाम आगे बढ़ाया है, जिससे आप बाप बन गए हो, जिससे आपका सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि आप मर्द हो, उसको भी गिफ्ट दो। जैसे आप लेबोरेटरी में जाते हो और फीस देकर अपना ग्रुप चेक करते हो, ब्लड ग्रुप चेक करते हो, अपने टेस्ट करवाते हो कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ये वो एक हिस्सा है आपकी लाइफ का जिसने आपको गिफ्ट दिया, आपका नाम चला, आपकी पहचान हुई कि आप मर्द हो। अब आपका काम है कि आप वो पे करो, उसको प्यार दो, उसको गिफ्ट दो, उसको एप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो। ये जरूरी नहीं कि हाँ ये तो अब सोनी नहीं रही। सोनी मां और बीवी बीवी होती है। जब वो आई थी वो सोनी थी। मां होती है, मां सोनी नहीं होती। मां होती है, बीवी होती है। सोनी दुनिया होती है। दुनिया को कहो वो सोनी है, वो सोना है, वो प्यारा है, वो हीरो है, वो एक्ट्रेस है, वो ये है, वो दुनिया है। खानदान में जैसी मां है वो ऐसी ही मां है, जैसी बीवी है वो वैसी ही आपको रखना है, जैसा हस्बैंड है आपको उसी तरह से रहना है। बीवियां भी कहती हैं इसका पेट निकल आया है, इसका तो चेहरा ऐसा हो गया है, इसका तो वेट बढ़ गया है, इसका तो ये बातें छोड़ो, ये वक्त के साथ साथ होती हैं। खुदावंद के मंसूबे में आप शामिल हो और इसी तरह से सदा नहीं। आप तो देखो जमीन भी जिसमें बार बार बोया जाता है, अनाज बोया जाता है, वो उसकी भी ताकत बदल जाती है। दरख्तों के भी सक टूट जाते हैं। इसलिए इन बातों को सीरियस लें और खुदावंद के कलाम के सामने झुकें कि खुदा
اور خدا کا کلام